ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहं तीर्थास्पदम् शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धि पोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चतुकोलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तद्ब्रह्म देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव दैनिक नियमानुसार थोड़ी देर के लिए भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं। तत्पश्चात कतिपय शब्दों के द्वारा आप लोगों की सेवा की जाएगी। राधा रमना गोपी जन जीवना राधा रमना। जय जय राधा रमना राधा रमना गोपी जन जीवना राधा रमना। जय जय राधा रमना राधा रमना गोपी जन जीवना राधा रमना। जय जय राधा रमना राधा रमना गोपी जन जीवना राधा रमना। जय जय गोपी जन जीवना राधा रमना। जय जय गोपी जन जीवना राधा रमना। जय जय गोपी जन
जय जय नंद नंदना नंद नंदना त्रिभुवन वंदना नंद नंदना जय जय त्रिभुवन वंदना नंद नंदना जय जय त्रिभुवन वंदना नंद नंदना जय जय नंद नंदना नंद नंदना त्रिभुवन वंदना नंद नंदना जय जय नंद नंदना नंद नंदना जन मन रंजना नंद नंदना जय जय जन मन रंजना नंद नंदना जय जय जन मन रंजना नंद नंदना जय जय राधा रमना राधा रमना गोपी जन जीवना राधा रमना जय जय राधा रमना राधा रमना गोपी जन जीवना राधा रमना राधा रमना राधा रमना गोपी जन जीवना राधा रमना जय जय राधा रमना राधा रमना गोपी जन जीवना राधा रमना जय जय राधा रमना राधा रमना गोपी जन जीवना राधा रमना बिहारी लाल की जय श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय अब आप सभी महानुभाव कृपया समाहित चित्त होकर बैठ जाइए। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। While elaborating this Vedic mantra from the third chapter of Shvenashadar Upanishad, the 8th mantra from the 3rd chapter, it has been told to us, each and every individual soul is seeking happiness. From time immemorial, we are searching for happiness, but not an iota of happiness has so far been attained. We wanted to solve this mystery. It was found. The happiness which we are seeking is attained for eternity. It is infinite in magnitude and it increases all the time. This type of infinite, eternal, all the time increasing happiness can be only attained by attainment of God, because God is bliss and bliss is God. When we came to the conclusion that we want happiness
and happiness can only be attained by attainment of God, we started making efforts to know God. At this crucial juncture, the Vedas cautioned us, nobody can really know God. The science was also explained to us. God is transcendental, we are material. He is beyond Maya, we are under Maya. He is inspirer, we are being inspired by Him. He is the sustainer, we are being sustained by Him. He is the illuminator, we are being illumined by Him. He is omniscient, we are having little knowledge. In addition to all these things, He is the storehouse of infinite, contradictory attributes. He is smaller than the smallest, He is bigger than the biggest. He is farther than the farthest, He is nearer than the nearest. He is beyond virtues, He is beyond vices. He does not take incarnations. He has taken innumerable incarnations. He has no senses. He is doing the work of all the senses put together. He is one and supreme. He dwells in each and every individual's heart. He is all pervasive and He is staying in His eternal abode. The day God is scared of Him, and the same God is being chased away by a small demon called Jarasandha. Karamanyani hasya bhavo bhavasya te durgashrayo tari bhayat palayanam kalatmanaya pramadayutashraya Swatmandate Khidyati Dhirpidambiha Bhagavat. Because He is the storehouse of innumerable contradictory attributes, nobody can really know God. We were terribly disappointed, dejected. At this juncture, the Vedas came into our rescue by stating, although God is incomprehensible, unattainable, but if He showers His grace, why the magic of His grace, anybody can see Him, can know Him, and can attain Him. Then the question comes, why that grace has not been showered? The answer was given, the grace is conditional, one must surrender. And the surrender has to be done by the mind. And the mind is terribly attached to the material world with a firm conviction that there is happiness in the material world. The true nature of the material world was also explained. And it was told, the world has made quantum progress in terms of materialism, but we have gone down in terms of spiritualism. But we need material as well as spiritual progress. For the sustenance of this physical body, we need materialism to a certain level, and for getting happiness, we need spiritualism. Adi Jagadguru Shankaracharya tells, the world is unreal, it's illusory. Jagadguru Ramanujacharya, Jagadguru Madhvacharya, Jagadguru Nimbarkacharya, they tell the world is real. The fifth original Jagadguru of this Kali Yuga, Jagadguru Kripaluji Maharaj, who is my spiritual master, he tells the world is real as well as apparent. The outer world is real, is unchanging. The inner world is unreal and it is changing all the times. Once the inner world is finished, the outer world is not going to do any harm. But if the inner world is there,
The outer world is not right in front of us by memorization. It can do harm. And if the inner world gets the outer world, the inner world gets ferocious. The mother of these two worlds is Maya. And Maya is the inner force of God. But by this inner Maya, God has created infinite universe. One component of this universe, Brahmandas, was explained. In each Brahmanda, there are 7 lokas, 5 mandalas, and 3 trilokis. Bhuhu, Bhuvaha, Swaha, Maha, Jana, Tama, Satya. Those are the 7 lokas. 5 mandalas, Bhumandal, Chandra Mandal, Surya Mandal, Parameshti Mandal, Swayambhu Mandal, and 3 trilokis. Bhu, Bhuva, Swaha, first triloky. Swaha, Maha, Jana, second triloky. Jana, Maha. Bhu, Bhuva, Swaha, first triloky. Swaha, Maha, Jana, second triloky. Jana, Tapa, Satya, third triloky. This is the outer world, but there is an important world, that is the inner world. Regarding the inner world, certain atomic principles were told to you. हम लोग माया के अंदर में है, माया में 3 गुण है, इसलिए हमारे भीतर ये 3 गुण सदा रहते हैं। ये 3 परिवर्तनशील गुणों के कारण संसार में कोई भी व्यक्ति अन्य किसी भी व्यक्ति के मुआफिक एक क्षण के लिए नहीं हो सकता। गुणों में समानता आ जाती है, दोस्ती हो जाती है, गुणों में असमानता आ जाती है, दुश्मनी आ जाती है। अगर ये संसार की वास्तविकता को मान लेंगे, हम अशांत नहीं रहेंगे। दूसरा सिद्धांत, संसार में कोई भी व्यक्ति अन्य किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य नहीं कर सकता। हम आनंद के अंश हैं। अभी तक आनंद नहीं मिला, और आनंद मिलेगा जब वो मिलेगा। तो जब तक वो नहीं मिला है, हम जो भी करेंगे अपने लिए। जब भगवान मिल जाएंगे, हम तृप्त हो जाएंगे, हम लोग जो भी कार्य करेंगे दूसरों के लिए। इसलिए कोई भी मायाधीन जीव हम लोग परार्थ सोच नहीं सकते, करना तो दूर की बात है। और भगवत प्राप्ति के बाद महापुरुष और भगवान परार्थ को छोड़कर और कुछ कर ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। तीसरा सिद्धांत, संसार में न सुख है न दुख है, हम आनंद के अंश हैं। जो वस्तु मिलती है, जो व्यक्ति मिलता है, हम सुख मानने लगते हैं। मानने के कारण चिंतन होता है, चिंतन से आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना की उत्पत्ति होती है, कामना की पूर्ति से लोभ, अपूर्ति से क्रोध। अगर सुख नहीं मानेंगे तो चिंतन नहीं होगा, चिंतन नहीं होगा आसक्ति नहीं आएगी, आसक्ति नहीं होगी कामना नहीं होगी, कामना नहीं होगी लोभ क्रोध का प्रश्न ही नहीं रहेगा। चौथा सिद्धांत, संसार में कोई किसी को भीतर से अच्छा नहीं कह सकता। लेकिन आश्चर्य है, हम लोग दूसरों की झूठी तारीफ सुनने के लिए समय नष्ट करते हैं, धन उड़ा देते हैं, मान जीवन को नष्ट कर देते हैं। संसार में 2 पार्टी थी, हैं, होंगी। अच्छे लोग यानी भगवान और महापुरुष, और खराब लोग हम मायाधीन लोग। अच्छे लोग जो करेंगे हम उसकी बुराई करेंगे, और हम लोग जो करेंगे अच्छे लोग भगवान महापुरुष हमारी बुराई करेंगे। जब एक पार्टी से बुराई सुननी है तो हम क्यों ना अच्छा बन जाए, अच्छा कहलवाने के चक्कर में क्यों रहे। 5वां सिद्धांत, संसार में तो सुख नहीं है, स्वर्ग में भी सुख नहीं है, ब्रह्मलोक तक
कहीं पर सुख का लवलेश भी नहीं है। अब तक मन का निर्णय था संसार में सुख है, अब मालूम पड़ गया संसार में सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है। मन संसार से हट गया। अब इस विरक्त मन को ईश्वर के पास कौन लेकर जाएगा? भगवान से भगवान के बारे में जान लेंगे, लेकिन भगवान तो अदृष्ट मव्यवहार्य मग्राह्य मलक्षण अचिंत्य मव्यपदेश्य मेकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम। मांडुक्योपनिषद। भगवान को कोई देख नहीं सकता, कोई बात नहीं कर सकता, कोई जान नहीं सकता, इसलिए भगवान से भगवान के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। ठीक है, हम लोग ग्रंथ पढ़ लेंगे, लेकिन जैसे भगवान हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, भगवान की वाणी वेद भी हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। तो संसार से मन का वैराग्य तो हो गया, भगवान को कैसे जानेंगे? ना भगवान से भगवान के बारे में जानकारी मिलेगी, ना वेद शास्त्र पढ़कर हम भगवान को जान पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, संसार से मन का वैराग्य के पश्चात ईश्वरीय शरणागति से पहले और एक तत्व की आवश्यकता हुई। वो तत्व क्या है? वेद उत्तर देता है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्भेद मायान नास्त्य कृतः कृतेन तत् विज्ञानार्थम स गुरुमेव विगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। वेद तत्वदर्शी ने अनुभव किया है, ये कर्म से कुछ मिलने वाला नहीं, कर्म के लिए घृणा हो गई। आनंद पाने के लिए उसको पाना पड़ेगा, और उसको पाने के लिए वास्तविक महापुरुष के पास जाना ही पड़ेगा। तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमं शाब्दे परिजने स्नातम ब्रह्मण्योपशमाश्रयम्। गीता। जो थियोरिटिकल मैन है और प्रैक्टिकल मैन है, उसकी शरण में जाना पड़ेगा। तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। गीता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन बात नहीं, निपात नहीं, प्रणिपात। पात क्या है? हम लोग जाकर प्रणाम करते हैं ना, दंडवत प्रणाम, वो पात है, शरीर को लेटा देना। निपात शरीर का समर्पण, मन का समर्पण। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन प्रणिपात शरीर का समर्पण, मन बुद्धि का समर्पण और निष्काम भाव युक्त होकर तब गुरु परिप्रश्न करने का मौका देता है। परिप्रश्न माने अनादिकाल से जितनी शंकाएं हैं, और फिर जब शिष्य निर्भ्रांत हो जाता है, फिर गुरु उसको सेवा प्रदान करता है। गुरु बिनु भावनिधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। तुलया मलबेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम। भागवत। सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो। भागवत। रहो गणैर तत्तपसा न याति। भागवत। कृष्ण भक्ति मूल
भय साधु संग चैतन्य चेतामृत। बाइबल भी कहती है, nobody can come directly to me but through my messenger। रामकृष्ण परमहंसदेव कहते हैं, a spiritual master is a commissioned agent who settles negotiation between the supreme soul and the individual soul। महापुरुष कौन है? जो दलाली करता है। दलाली करता है? अरे दलाली को तो हम लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं। हाँ, महापुरुष दलाली करता है। कैसी दलाली है? ओ भगवान, ये जीव हम लोगों को अपनाना नहीं चाहते, तो उनके सामने हाथ जोड़कर उनका पैर पकड़ता है, भाई तुम अपनाओगे नहीं, कौन उसको अपनाएगा? और ये जीव संसार में मस्त है, वो वहां जाना नहीं चाहता है। जीव को समझाते हैं, उसको लाड़ दुलार करके महापुरुष भगवान के पास लेकर जाने के लिए प्रयास करता है। यानी भगवान अपनाना नहीं चाहते हम लोगों को, और हम वहां जाना नहीं चाहते। ये दोनों के सामने झुकता है, दोनों के सामने दोनों को समझाता है, यही काम करता है महापुरुष। तो आप लोग समझ गए होंगे, संसार से मन का वैराग्य के पश्चात ईश्वरीय शरणागति से पहले और एक तत्व की आवश्यकता हुई। वो तत्व है महापुरुष तत्व। श्री विवेकानंद कहते हैं that omnipotent, omnipresent, omniscient God is reflected in this modern plane through the lambs called messengers, prophets, messiahs। वो ईश्वर संसार में महापुरुष संत के द्वारा प्रतिफलित होते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, उसको पाने के लिए महापुरुष की शरणागति करनी पड़ेगी। और महापुरुष की परिभाषा क्या है? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जिसके पास निखिल दर्शन का ज्ञान है और जिसने ईश्वर को पा लिया है। निखिल दर्शन का ज्ञान है। अरे रामायण बोल देता है, भागवत बोल देता है, गीता बोल देता है, ये नहीं चलेगा। निखिल दर्शन का ज्ञान जिसके पास है, श्रुति शास्त्रों का ज्ञान, स्मृतियों का ज्ञान, वेदांत का ज्ञान, और केवल थियोरिटिकल ज्ञान से काम नहीं चलेगा। अनुभवात्मिक ज्ञान भी है, उसने उसको पाया है। हमारे यहां दो प्रकार के महापुरुष हैं। एक जगत गुरु परंपरा के, जैसे आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य। संस्कृत में बोलते हैं, संस्कृत में लिखते हैं और उसकी प्राप्ति भी हुई है। और दूसरी परंपरा कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, नानक जी, रामकृष्ण परमहंसदेव जी, ये प्रांतीय भाषा में बोलते हैं, लेकिन उसकी प्राप्ति हुई है। यस्मिन् ज्ञाने सर्वमिदं विज्ञातम भवति, जिसको जान लेने पर सारे शास्त्रों का ज्ञान अपने आप हो जाता है। 99.99% हमारे दक्षिण भारत में अलवर संत हुए हैं, नयनार संत हुए हैं, और अधिकांश ये जो हुए हैं हमारे भजनानंदी परंपरा के, ये सब के सब अंगूठा छाप है, लेकिन उनकी प्राप्ति हो गई, सारे ज्ञान आ गए। तो ये दो परंपरा के महापुरुष हुए हैं। 99.99% महापुरुष भजनानंदी परंपरा के, और 0.01% ये जगत गुरु परंपरा के।
लेकिन दोनों में अनुहात्मिक ज्ञान, ईश्वर को प्राप्त करने का ज्ञान कंपलसरी है। और ईश्वर प्राप्ति हो गई, सारे ज्ञान अपने आप आ गए। महापुरुष क्या क्या कार्य करता है? महापुरुष तत्व ज्ञान देता है, नंबर 1। साधना सिखाता है, नंबर 2। हमारी शंकाओं का समाधान करता है, नंबर 3। हम जब साधना करने लगेंगे, हमारे खराब संस्कार आ जाएंगे, महापुरुष छिप छिप कर लड़ता है, नंबर 4। और साधना करके जब ये शुद्ध हो जाता है, वो दिव्य ईश्वरीय प्रेम प्रदान करता है। और जिस प्रेम को प्राप्त करके सदा के लिए वो जीव मालामाल हो जाता है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंत नहीं कोई, सोई धनवंत जानिए, जाहि प्रेम धन होय। ये संसार में हम लोग सब भिखमंगे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास, राम के दास। ये रामदास श्यामदास कब बनेंगे? जब ईश्वरीय प्रेम मिल जाएगा। ईश्वरीय प्रेम कौन दे सकता है? वास्तविक महापुरुष, जिसके पास ये ईश्वरीय प्रेम है। कब वो देगा? जब हम इसको शुद्ध कर लेंगे। शुद्ध कब होता है? साधना के द्वारा। क्या आज तक हमको कोई महापुरुष नहीं मिला? अरे संत लोग भी आते हैं, हम लोग भी आते हैं। इसका उत्तर तुलसीदास जी देते हैं। गुरु बिनु होय के ज्ञान, ज्ञान के होय विराग बिनु। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, स्वाभाविक। फिर कहते हैं नहीं नहीं, वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं मिलता। यानी कभी ऐसा हुआ वैराग्य था लेकिन गुरु नहीं मिला तो काम नहीं बना। कभी ऐसा भी हुआ गुरु मिला था और वैराग्य नहीं था, हमारे पास टाइम ही नहीं था, फुर्सत ही नहीं थी, इसलिए काम नहीं बना। और कभी ऐसा भी हुआ गुरु भी मिला और वैराग्य भी था लेकिन काम नहीं बना। आप कहेंगे काम कैसे नहीं बनेगा जी? गुरु भी मिल गया, वैराग्य भी था, काम कैसे नहीं बना? इसलिए नहीं बना, हमने महापुरुष को पहचान नहीं पाया, समझ नहीं पाया। बहुत ध्यान से इसको समझिए। हमारी गाड़ी कहां रुकी हुई है इसको पहचानना है। हमने क्यों महापुरुष को जान नहीं पाया? जैसे एक छोटा सा बच्चा एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का ज्ञान को जान नहीं पाएगा। पापा से पूछा, पापा हमारे पड़ोस में जो रहते हैं वो क्या करते हैं? अरे वो प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चा चला गया और देख रहा है वो प्रोफेसर साहब कुछ छोटे बच्चों को लेकर बैठे हैं और उनको पढ़ा रहे हैं। बोलो का बोलो, फिर मां बोलो, फिर ला बोलो, एक साथ बोलो कमाल। बच्चे ने सोचा पिताजी कह रहे थे, पापा कह रहे थे, ये बड़े काबिल है, यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ाते हैं, ये तो कमल ठीक से बोल नहीं पाते हैं। आया, पापा पापा मुझे सही सही बताओ, आप कह रहे थे वो तो प्रोफेसर है लेकिन कमल तो बोल नहीं पाते।
जैसे एक छोटा सा बच्चा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को पहचान नहीं पाता है, तो हम लोग माया के अंडर में है, तो महापुरुष को कैसे जानेंगे? यार चित्ते कृष्ण प्रेमा करय उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझाए। जिसके हृदय में श्री कृष्ण प्रेम का प्राकट्य हो गया है, उसकी क्रिया, उसकी मुद्रा, उसका वाक्य सरस्वती बृहस्पति भी नहीं समझ पाएंगे। हम लोग कैसे समझेंगे? अगर हम महापुरुष को अपनी बुद्धि से नहीं जान पाएंगे तो हमारा काम कैसे बनेगा? हम अपनी बुद्धि से महापुरुष को जान नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ लक्षण है हम महापुरुष को पहचान पाएंगे। अरे ये रामानंद जी हो, कबीरदास जी हो, विवेकानंद हो, ये लोग तो हमारे समान थे। इन लोगों ने महापुरुष को पहचाना, महापुरुष की शरणागति की, उनका काम बन गया, तो हमारा काम भी बन सकता है। तो महापुरुष को पहचानने के लिए क्या वहां जाना पड़ेगा? ना, इस संसार में महापुरुष लोग आते। 4 प्रकार के लोग होते, बहुत अच्छे से इसको समझिए। भीतर ठीक, बाहर ठीक। नंबर 2, भीतर ठीक, बाहर गड़बड़। नंबर 3, भीतर गड़बड़, बाहर गड़बड़। नंबर 4, भीतर गड़बड़, बाहर ठीक। ये 4 प्रकार के लोग संसार में पाए जाते हैं। पहला, भीतर ठीक, बाहर ठीक, यानी भीतर से माया निवृत्ति हो गई है, काम क्रोध लोभ कुछ नहीं है, और बाहर भी माया का विकार नहीं है। ये लोग महापुरुष, इनको पहचानना आसान है, लेकिन बहुत कम संख्या में इस श्रेणी के महापुरुष पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के लोग, भीतर ठीक, बाहर गड़बड़, यानी भीतर से माया निवृत्ति हो गई है, काम क्रोध कुछ नहीं है, लेकिन बाहर में माया के सारे विकार दिखाई पड़ते हैं। ये लोग भी महापुरुष है, और इनको पहचानना सबसे कठिन कार्य है। 99.99% महापुरुष इसी श्रेणी के हैं। तीसरे प्रकार के लोग, भीतर गड़बड़, बाहर गड़बड़। भीतर में सारे माया के विकार है, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष सब कुछ है, और बाहर में भी वही चीजें प्रकटित होती है। ये हम साधारण लोग, हमको पहचानना आसान है। और चौथे प्रकार के लोग, भीतर गड़बड़, बाहर ठीक, यानी भीतर में काम क्रोध लोभ सब कुछ है, लेकिन बाहर दिखाई नहीं पड़ता है। आश्रम चल रहा है, शिष्य परंपरा भी है, इन लोगों को कहते हैं ढोंगी, इम्पोस्टर्स, पाखंडी। इनको पहचानना कठिन है। यानी दूसरे प्रकार के महापुरुष और चौथे प्रकार के लोग ढोंगी, इनको पहचानना सबसे कठिन कार्य है। प्रथम प्रकार के महापुरुष पहचानना आसान है, तीसरे प्रकार साधारण लोग, इनको पहचानना, हम लोगों को पहचानना आसान है। आप कहेंगे भाई माया निवृत्ति होने के बाद माया का कार्य, बहुत ध्यान से इसको समझिए। हम लोग बड़े लिमिटेड पैमाना लेकर जाते हैं, पैसा रख देते हैं, बेटा हम पैसा नहीं छूते हैं। अरे इसका तो लोभ नहीं है। हम जाएंगे महापुरुष को गाली देंगे, अगर वो मुस्कुराता रहेगा हम समझ जाएंगे इनको क्रोध नहीं आता है। ये महापुरुष है। ये ढोंगी लोग, पाखंडी लोगों को मालूम है संसार वाले बहुत भोले हैं, ये बहुत साधारण पैमाना लेकर आएंगे जानने के लिए, वो तैयार बैठते हैं।
अगर ये पैमाना लेकर जाएंगे हम ढोंगियों के चक्कर में आ जाएंगे, उनके जाल में फंस जाएंगे और वास्तविक महापुरुष से वंचित हो जाएंगे। क्योंकि महापुरुष को कोई पब्लिसिटी से मतलब नहीं है, वो तो साधक ही ढूंढता है। आप कहेंगे भाई एक बार भगवत प्राप्ति होने के बाद फिर माया का कार्य कैसे हो सकता है? लगता है हम लोगों ने इतिहास नहीं पढ़ा। 99%, 99.99% महापुरुष हुए हैं, भगवान के अवतार, माया देश मायातीत होकर माया का कार्य करते हैं। चलिए, समय तो कम है। ब्रह्मा जी को माया लग गई। जब उनको मालूम पड़ा श्री कृष्ण अवतार लेकर आए हैं नारद जी से, ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की परीक्षा ले रहे हैं। नारद जी को माया लग गई, भगवान का हृदय उनके ऊपर माया का अधिकार हो गया, भगवान को अभिशाप दे रहे हैं। पार्वती जी को माया लग गई, प्रभु राम को पहचान नहीं पाते, क्योंकि प्रभु राम रे वृक्षा पर्वतस्ता गिरि गहन लता, सीता जी के विरह में अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं, लक्ष्मण जी को पहचान नहीं पाते हैं, पेड़ों से चिपट कर रो रहे हैं, मेरी सीता कहां चली गई, पछाड़ खाकर गिर रहे हैं। तो इस अवस्था में देखकर पार्वती जी की बुद्धि घूम गई, उन्होंने प्रभु राम की परीक्षा ली। सीता जी का वेश धारण करके बैठ गई और जैसे ही प्रभु राम उसी रास्ते में आ रहे थे, पार्वती जी को सीता जी के वेश में देखकर प्रभु राम ने कहा, माता जी आप अकेली यहां? तो पार्वती जी सोचने लगी, अरे ये तो हमको पहचान लिए। दौड़कर गए शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तुमने परीक्षा ले ली? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, की न प्रणाम तुम्हारी नाई। हमने कोई परीक्षा नहीं ली, सफेद झूठ बोल रही है। शंकर भगवान ने परित्याग कर दिया। फिर चलिए, भरत जी महाराज अपनी मां के लिए किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? हन्यामहमिमां पापं कैकेयीं दुष्टचारिणीं। शत्रुघ्न जी, जिन भरत जी की प्रशंसा प्रभु राम कर रहे हैं, वही अपनी मां के लिए किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? शत्रुघ्न जी एक अबला के ऊपर हमला, मंथरा के ऊपर, अरे देश से निकाल देते। अबला की रक्षा तुम्हारा धर्म है। उसके दांत टूट गए हैं, उसकी चोटी पकड़कर खींच रहे हो, उसकी पीठ पर लात मार रहे हो, खून निकल रहा है उसके मुंह से, तुमको दया नहीं आती? इतना क्रोध। हनुमान जी करोड़ ब्राह्मणों की हत्या कर रहे हैं, अर्जुन रिश्तेदारों की हत्या कर रहे हैं। गरुड़ जी महाराज अपने प्रभु को पहचान नहीं पाते। ज्ञानी भक्त शिरोमणि त्रिभुवन पति करे यान, ताहि माया मोह प्रबल पामर करत गुमान। ज्ञानियों में तप करने वाले और भक्तों में तप करने वाले अपने प्रभु को पहचान नहीं पाते। जब बंधन में देखे थे, नागपाश बंधन में, विश्वामित्र जी कितना क्रोध कर रहे हैं। वशिष्ठ मुनि को मारने के लिए रात को 12 बजे फरसा लेकर खड़े। गुस्सा इतना क्यों है? ये मेरे से आगे क्यों है? बताइए, संसार में तमाम लोगों से आगे हैं।
अरे भाई तुम कम्पीट करो ना, तुम मारने के लिए तैयार हो। और दुर्वासा जी अपने क्रोध के लिए तो प्रसिद्ध है। ये सारे के सारे महापुरुष भगवान के नित्य परिकर, ये काम का कार्य, क्रोध का कार्य, लोभ का कार्य, ईर्ष्या का कार्य, गोपियों को देखिए, ये सारे कार्य लोग कर रहे हैं। क्या भगवत प्राप्ति के बाद फिर माया हावी हो जाती है? हमने तो सुना है तत् विष्णु हो परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरया। एक बार भगवत प्राप्ति हो गई, माया सदा के लिए चली जाती है। फिर ये लोग कैसे माया का कार्य कर रहे हैं? चलिए इसका विज्ञान हम लोग समझते हैं। एक दिन हमने बताया था इंद्रियेभ्यः परायर्थार्थेभ्यश्च परं मनः, कठोपनिषद। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः, गीता। देखिए 4 दिन का विषय हमको 1.25 घंटे में बोलना, तो इसीलिए आप लोगों को बिल्कुल ध्यानस्थ होकर समझना, क्योंकि समय कम है। तो वेद कहता है इंद्रियों से परे इंद्रियों का विषय, उससे परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा, आत्मा से परे माया, माया से परे परमात्मा। इंद्रियां, मन, बुद्धि को हटा दीजिए। परमात्मा, उनके अंदर माया, माया के अंदर जीवात्मा। जब माया गबन करती है, बहुत ध्यान से इसको समझिए, जब माया गबन करती है तो माया 3 गुण वाली है। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम वेद। सत्वगुणी माया, रजोगुणी माया, तमोगुणी माया। जब माया गबन करती है, त्रिगुण माया का प्रभाव जीवात्मा के ऊपर, आत्मा में त्रिगुण माया का प्रभाव है, और इसलिए ये जीवात्मा, जीव त्रिगुण युक्त हो गया। हम लोगों के ऊपर माया का प्रभाव है ना, तो इसलिए हमको 3 गुण वाली माया सर्वत्र दिखाई पड़ रही है। जीव त्रिगुण युक्त हो गया, जीव की लाइट पड़ी बुद्धि के ऊपर, बुद्धि त्रिगुण युक्त हो गई। बुद्धि की लाइट पड़ी मन के ऊपर, मन त्रिगुण युक्त हो गया। मन की लाइट पड़ी इंद्रियों के विषयों के ऊपर, इंद्रियों के विषय भी त्रिगुण युक्त हो गए। और इंद्रियों के विषयों की लाइट पड़ी इंद्रियों के ऊपर, इंद्रियां भी त्रिगुण युक्त हो गई। बहुत ध्यान से इसको समझिए। यहां भगवान, यहां माया, यहां जीव। तो ये जो माया है, ये 3 गुण वाली माया है, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी माया। तो इसकी लाइट पड़ रही है जीव के ऊपर। जीव त्रिगुण युक्त है। जीव की लाइट पड़ी बुद्धि के ऊपर, बुद्धि त्रिगुण युक्त हो गई। बुद्धि की लाइट पड़ी मन के ऊपर, मन त्रिगुण युक्त हो गया। मन की लाइट पड़ी इंद्रियों के विषयों के ऊपर, इंद्रियों के विषय भी त्रिगुण युक्त हो गए। और इंद्रियों के विषयों की लाइट पड़ी इंद्रियों के ऊपर, इंद्रियां त्रिगुण युक्त हो गए। When Maya is governing our senses, the objects of the senses, our mind, our intelligence are under the spell of Maya. We see Maya everywhere. अब भगवान कहते हैं समाने वृक्षे पुरुखो निमग्नो वेद द्वास वर्णा सयुजा सखाया वेद। भगवान कहते हैं बेटा देखो बहुत हो गया, एक काम करो, चाहे
राइट अबाउट टर्न लेकर या लेफ्ट अबाउट टर्न लेकर, बहुत ध्यान से इसको समझिए। ये राइट अबाउट टर्न क्या है? विवेक से जो वैराग्य होता है, द रेनंसिएशन दैट स्टेम्स फ्रॉम रियल नॉलेज फ्रॉम आवर conscience is called right about turn। और लेफ्ट अबाउट टर्न क्या है? संसार से झापड़ खाकर जो वैराग्य होता है, 99% हम लोगों का जो वैराग्य संसार से झापड़ खाकर, चाहे कैसे भी हो। ये महात्मा बुद्ध, महावीर, इनको वैराग्य ये विवेक से, बात ही नहीं। तो कैसे भी करके तुम राइट अबाउट टर्न लेकर या लेफ्ट अबाउट टर्न लेकर हमारे सामने आ जाओ। अब जब जीव भगवान के सामने आ जाता है, बीच वाली माया चली गई, अब भगवान जीव को गवर्न कर रहे हैं। बहुत ध्यान से इसको समझिए। भगवान निर्गुण युक्त है, तो निर्गुण भगवान की लाइट पड़ी जीव के ऊपर, जीव निर्गुण हो गया। अब निर्गुण जीव की लाइट पड़ी बुद्धि के ऊपर, बुद्धि भी निर्गुण युक्त। बुद्धि की लाइट पड़ी मन के ऊपर, मन भी निर्गुण युक्त। और मन की लाइट पड़ी इंद्रियों के विषयों के ऊपर, इंद्रियों के विषय भी निर्गुण युक्त। और निर्गुण युक्त इंद्रियों के विषय की लाइट पड़ी इंद्रियों के ऊपर। इस समय इंद्रियां भी निर्गुण हो गई। जब भगवान गवर्नर बन गए, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, इंद्रियों के विषय सब निर्गुण है। इस समय सिया राम माय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ईशावास्यमिदं सर्वं सर्वं खल्विदं ब्रह्म वेद, पुरुष एवेदं सर्वं वेद। ईशावास्यमिदं सर्वं वेद। उमा जो राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत, कासन करहि विरोध। जब माया गवर्न करती थी हमारी इंद्रियों के ऊपर, इंद्रियों के विषयों के ऊपर, मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, माया का प्रभाव सर्वत्र हम तीन गुण वाली माया दिखाई पड़ती थी। लेकिन जब जीव शरणागत हो जाता है, अब बीच वाली माया गई, अब भगवान डायरेक्ट गवर्न जीव को करते हैं। और जब भगवान गवर्न करते हैं, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी इंद्रियां, इंद्रियों के विषय सब निर्गुण युक्त, सर्वत्र भगवान दिखाई पड़ते हैं। जब भगवान आते हैं, महापुरुष आते हैं, हम भगवान और महापुरुष में जो माया का दर्शन करते हैं, ये हमारी बीमारी है, ये फैक्ट नहीं है। और जब महापुरुष सरेंडर कर देता है, जीव सरेंडर करके जब महापुरुष बन जाता है, महापुरुष सर्वत्र जो भगवान को देख रहा है, ये फैक्ट है, क्योंकि भगवान कण कण में विद्यमान है। भगवान में माया नहीं है, बहुत ध्यान से समझिए, लेकिन माया के कण कण में भगवान विद्यमान है। इसीलिए भगवत प्राप्ति के बाद संत सर्वत्र जो भगवान का दर्शन करते हैं, ये फैक्ट है। और हम लोग माया के अंडर में रहने के कारण भगवान और संत में जो माया देखते हैं, ये हमारी इल्यूशन है, हमारी दृष्टि में कमी है। तो आप लोग समझ गए होंगे महात्मा किसको कहते हैं? जिस जीवात्मा ने परमात्मा की शरणागति कर ली, उस जीवात्मा का हर क्षण का कार्य वो परमात्मा करता है, उसी को महात्मा कहते हैं। जिस पुरुष ने उस परम पुरुष को पा लिया, वो महापुरुष बन गया। जिस जीवात्मा ने उस परमात्मा को पा लिया, वो महात्मा हो गया।
महात्मा महापुरुष अकर्ता हो गया, वो कोई भी कार्य नहीं करता। जैसे आप लोग सुने होंगे, अरे कभी कभी किसी के ऊपर किसी भूत हावी हो जाता है, और जब तक वो भूत रहेगा, वो जिस प्रकार वो व्यक्ति को नचाएगा, वो व्यक्ति को उस प्रकार नाचना पड़ता है। छोटी सी बच्ची है, पंडित का भूत हावी हो गया, संस्कृत में प्रवचन दे देती है, और जब भूत चला जाता है वो वोंदू भट हो जाती है। तो जिस जीवात्मा के ऊपर वो नंद पुत्र रूपी परमात्मा रूपी भूत हावी हो जाता है, वो भूत निकलकर और नहीं जाता है, उसको महात्मा कहते हैं। अब महात्मा कुछ नहीं करता है, उसका हर क्षण का कर्म वो परमात्मा करता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, जो करे सो हरि करे, होत कबीर कबीर। कबीरदास जी कहते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा हर क्षण का कार्य वो भगवान कर रहे हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं, अरे महात्मा लोग, ये बड़े बड़े महापुरुष लोग, ये सब धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र स्मात् कृतात् कृतात् अन्यत्र भूता च भव्या च यत्तत् पश्यसि तत्पदः। हम लोग धर्म करते हैं, कुछ पाना है, अधर्म करते हैं, कुछ पाना है, आनंद अभी तक नहीं मिला है। लेकिन महापुरुष भला धर्म क्यों करे, अधर्म क्यों करे? धर्म अधर्म से वो परे चला जाता है। देखिए, जैसे एक विद्यार्थी यूनिवर्सिटी जा रहा है, तो उसने अपने सीनियर से पूछा, भाई साहब आप आजकल यूनिवर्सिटी क्लास अटेंड नहीं करते? अरे हम यूनिवर्सिटी पास कर चुके हैं, हम क्लास अटेंड क्यों करें? तो परसेंटेज शॉर्ट नहीं हो जाएगी। अरे भाई, यूनिवर्सिटी के कानून तुम्हारे ऊपर लागू होता है, हमारे ऊपर नहीं। तो वेद शास्त्र का कानून हम लोगों के ऊपर लागू होता है, और जिसने उसको पा लिया, वेद शास्त्र वापिस आ जाते हैं। ब्रह्मविद श्रुति मूर्धनि, महापुरुष वेद शास्त्र के ऊपर पैर रखकर चलता है। वेद शास्त्र का कानून महापुरुष के ऊपर लागू नहीं होता। आप लोगों ने कबड्डी खेल देखा होगा, कबड्डी में कबड्डी कबड्डी कहकर एक जाता है, उसको प्लेयर लोग पकड़ने के लिए प्रयास करते हैं। अगर वो प्लेयर मेन लाइन को छू लेता है, उसका काम बन गया, उसको जितने लोग छुएंगे सब आउट हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जिस जीवात्मा ने वो परमात्मा रूपी मेन लाइन को छू लेता है, उसका काम बन गया, और उसके जितने लोग उसको छुएंगे, उनका भी सदा के लिए काम बन जाएगा। और एक उदाहरण समझिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। एक पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, क्या करे, दंगा चल रहा है, तो आईजी उसके ऊपर जो ऑफिसर है, डीजी वगैरह, वो कहते हैं गोली चला दो। अरे कैसे गोली चलाए, बहुत बड़े नेताजी हैं। अरे हम ऑर्डर देते हैं ना, गोली चलाओ। उसने गोली चला दी और वो बड़े नेताजी मर गए। तुमने गोली चलाई? जी हां। तुमको फांसी मिलेगी। हमसे बात मत करो, हमको जिसने ऑर्डर दिया था उससे बात करो, हम तो आज्ञाकारी थे। और जिसने ऑर्डर दिया था वो कहता है, अरे भाई हमने आज्ञा दी, ठीक समय में गोली चलाई गई, अभी तो 2 ही लोग मर गए, नहीं तो 200 लोग मारे जाते। और जिसने गोली चलाई वो आज्ञाकारी है, उसको तो इनाम मिलेगा। तो महात्मा
वो भगवान की आज्ञा को पालन करता है, उससे अगर कोई कार्य दिखाई पड़ता है, गड़बड़ कार्य है, उसको दंड नहीं मिलता है, उसको इनाम मिलता है। महापुरुष तो अकर्ता हो जाता है, वो कुछ नहीं करता है। काहू के पल भजन सो काहू के आचार्य, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। महापुरुष कहता है हम निश्चित होकर अरे भगवान की गोद में सो गए, हमको कुछ करना नहीं है। आप कहेंगे ये भगवान और महापुरुष लोग ये तो सब गड़बड़ कार्य करते हैं। ध्यान दीजिए, भक्ति भक्त भगवान गुरु चतुर नाम बपु एक। भक्त भक्ति भगवान और गुरु ये एक तत्व के चार अलग अलग रूप है। देखिए, महापुरुष और भगवान लोग जीव कल्याण के लिए एक्टिंग करते हैं। क्या अर्जुन को मालूम नहीं था युद्ध के मैदान में क्या होता है? खुद तो गया था ठाकुर जी को बुलाने के लिए, और जब पूरी सेना तैयार है, कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। अगर अर्जुन अज्ञानी बनकर प्रश्न नहीं करता, श्री कृष्ण ज्ञानी बनकर उत्तर नहीं देते, और गीता के समान ग्रंथ विश्व को मिलता नहीं। इसीलिए महापुरुष और भगवान लोग संसार में आते हैं, एक ज्ञानी बन जाता है, एक अज्ञानी बन जाता है। एक अज्ञानी बनकर प्रश्न करता है, एक ज्ञानी बनकर उत्तर देता है। चाहे रामायण देख लीजिए, चाहे भागवत देख लीजिए, ये आपस की बातचीत है। एक महापुरुष अज्ञानी बनकर प्रश्न कर रहा है, एक महापुरुष भगवान ज्ञानी बनकर उत्तर दे रहा है। और जब ये किताब बन जाती है, हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता है। जब हमारे सामने में भी इस प्रकार की समस्या आएंगी, उस समस्या का समाधान कैसे होगा? तो महापुरुष और भगवान जीव कल्याण के लिए इस प्रकार कार्य करते हैं। लेकिन वही कार्य हम करते हैं तो हम फंस जाते हैं। और महापुरुष और भगवान इस प्रकार कार्य कैसे कर लेते हैं? देखिए, उनके पास एक शक्ति है, योग माया शक्ति। अपनी पर्सनालिटी में रहते हैं और माया का कार्य करते हैं। जैसे जो लोग कार्यकर्ता लोग हैं, बहुत ध्यान से इसको समझिए। उनके पास योग माया शक्ति है, इसीलिए वो निर्लिप्त होकर रहते हैं। योग माया शक्ति क्या है वो हम नहीं समझ पाएंगे। एक छोटा सा बच्चा, उसने मम्मी से पूछा, मम्मी मैं किसका बेटा हूं? तो मेरा बेटा है। पापा के पास चला गया, पापा पापा बताओ मैं किसका बेटा हूं? तो मेरा बेटा है। मम्मी तो कह रही थी मैं मम्मी का बेटा हूं, और तुम कह रहे हो मैं तुम्हारा बेटा हूं। सच्ची सच्ची बताओ मैं किसका बेटा हूं? अरे तो हम दोनों का बेटा है। अरे हम दोनों का बेटा मैं कैसे हो सकता हूं? ये माँ बाप सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि भरकर उस बच्चे को समझाएंगे, बच्चा समझ नहीं पाएगा।
क्योंकि वो काम दोष से अपरिचित है। जब काम दोष युक्त हो जाएगा उसको समझाना नहीं पड़ेगा, अपने आप समझ जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम लोग माया के अंडर में है, मायातीत अवस्था में जो क्रियाएं होती है हम समझ नहीं पाएंगे। तो महापुरुष और भगवान ये योग माया शक्ति से कार्य करते हैं तो दिखाई पड़ते हैं माया का कार्य करते हुए, लेकिन वो योग युक्त होकर रहता है। अरे संसार में हम लोग कर लेते हैं। एक 18 साल की लड़की और एक 40 साल का एक पुरुष एक कमरे में रहते हैं। वो लड़की बहुत सुंदर है और वो पुरुष भी सुंदर है, तो दोनों में कोई संबंध नहीं, ना कोई संबंध नहीं। आप कहेंगे हो ही नहीं सकता, क्या दोनों महापुरुष थे? नहीं। वो लड़की अपने मोहल्ले में किसी लड़के से प्यार करती है और वो जो पुरुष है तो पड़ोस में एक नौकरानी है, उसके साथ खिड़की में बात भी करता है, प्रेम की बातें। लेकिन ये दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं। आप कहेंगे ऐसे हो ही नहीं सकता। अगर हम कह दें ये दोनों बेटी और बाप है, बचपन में ही उस पुरुष की स्त्री चली गई है, गरीब है इसलिए एक कमरे में रहते हैं, लेकिन बचपन से बाप ने उस बेटी को पाला, मां चली गई। अंधेरे में भी वो लड़की जाती है, मेरी लड़की कमला, मेरी लड़की कमला, बार बार सोचकर वो ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां योगींद्र मुनींद्र भी नहीं पहुंच पाएंगे। जब संसार वाले हम लोग ये कमाल कर लेते हैं तो भगवान और महापुरुष क्या ये कार्य नहीं कर सकते? ठीक है, समझ गए महापुरुष और भगवान के पास योग माया शक्ति है, इसलिए योग युक्त होकर माया का कार्य कर लेते हैं। लेकिन हम तो संसार वाले हैं, बड़े लोग जो करते हैं हम उसका अनुकरण करते हैं। महाजनों ये नगत सपथा यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। संसार में बड़े लोग जो करते हैं हम साधारण लोग उसका अनुकरण करते हैं। जी हाँ, तो भगवान और महापुरुष ये जो धर्म के विरुद्ध कभी कभी कार्य करते हैं, हम साधारण लोग अगर उसकी नकल करेंगे तो समाज संसार में तो बेविचार अनाचार फैल जाएगा। यही प्रश्न था परीक्षित जी का। संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वरः सकथं धर्म सेतूनां कर्ता वक्ता विरक्षिता प्रतीपमाचरत् धर्म परदारा विमर्शनम्। भागवत आप्त कामो यदुपति कृतवान् वै जुगुप्सितं किमभिप्राय एतन्नः संशयं छिन्ति सुब्रतः। भागवत भगवान का अवतार धर्म को स्थापित करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए, और वही भगवान धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, परस्त्रियों के साथ रास कर रहे हैं। ये परीक्षित जी का प्रश्न नहीं है। चोरी चोरी हम लोग मनी मनी प्रश्न करते हैं ना। अरे परीक्षित ने तो गर्भ में ही, प्रभु जब रक्षा कर रहे थे उन्होंने श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया, इसलिए जब गर्भ से बाहर आया
वो एक एक को परीक्षण कर रहा था। अरे ये सब गंदे संदे दिखाई पड़ते हैं, हमने जिसको गर्भ में देखा था वो कहां है, इसीलिए नाम पड़ गया परीक्षित। लेकिन चोरी चोरी हम लोग ये प्रश्न करते हैं ना, इसलिए हम लोगों की शंकाओं के समाधान करने के लिए परीक्षित ये प्रश्न कर रहे हैं। भगवान वेदकृत वेदविद वेद वेद्य, वेद का प्राकट्य भगवान से, वेद का मर्मज्ञ भगवान, और वेद से ही भगवान को जाना जा सकता है। वही स्वयं वेद के विरुद्ध कार्य करेंगे। शुकदेव परमंश ने उत्तर दिया, धर्म व्यतिक्रमो दृष्टा ईश्वराणं च साहसम तेजीयसां न दोषाय वन्ने सर्वभुजो यथा। परीक्षित, कभी कभी दिखाई पड़ता है भगवान और महापुरुष धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं, लेकिन जैसे अग्नि है, आप अग्नि में कोई भी गंदगी डाल दीजिए, अग्नि स्वयं शुद्ध और अपनी शुद्धता वो गंदी वस्तु को, चप्पल डाल दीजिए, जूता डाल दीजिए, पाखना डाल दीजिए, वो गंदी वस्तु आप बन जाती है, और अग्नि अशुद्ध नहीं, स्वयं शुद्ध और अशुद्ध वस्तु को अपनी शुद्धता। गंगा जी में तमाम गंदी नालियां जाकर मिलती है। इस बार करोड़ लोगों की भीड़ हुई गंगा जी में स्नान करने के लिए। गंदी नालियां गंगा जी बन जाती है, गंगा जी गंदी नाली नहीं बनती है। इसीलिए परीक्षित, जान अस्माकं सुचरितानि तान्येव त्वयोपास्यानि लोहितराणि। भगवान और महापुरुष के धर्म के अनुकूल आचरण का अनुकरण करना, धर्म के प्रतिकूल आचरण का अनुकरण करना सपने में भी नहीं सोचना। अरे संसार में जो लोग हमसे थोड़ा आगे हैं, हम उनकी नकल नहीं कर पाते। एक बाजीगर, एक नट, ओ 60 फीट ऊंचाई पर रस्सी बांधकर तमाम प्रकार डांस दिखाता है। एक पहलवान ने सोचा, अरे दुबला पतला ये नट ये कमाल कर लेता है, मैं नहीं किया, क्यों नहीं कर पाऊंगा। घर गया और उसने ऊंचाई पर रस्सी बांधा और एक पैर एक रस्सी के ऊपर, फिर दोनों हाथ फैलाकर दूसरे पैर उठाया रखने के लिए, सिर के बल नीचे आ गया, सारे दांत बाहर हो गए। भाई संसार में जो लोग हमसे आगे हैं, हम उनकी नकल नहीं कर पाते, भगवान और महापुरुष का अनुकरण क्या करेंगे। इसलिए भगवान और महापुरुष के धर्म के अनुकूल आचरणों का अनुकरण करना, धर्म के प्रतिकूल आचरणों का अनुकरण सपने में भी नहीं सोचना। भगवान और महापुरुष का प्रत्येक कार्य जीव कल्याण के लिए, जो धर्म के अनुकूल आचरण उसका अनुकरण करेंगे, धर्म के प्रतिकूल आचरण का अनुकरण सपने में भी नहीं सोचेंगे अनुकरण करने के लिए। महापुरुष आते हैं, भगवान आते हैं, तमाम प्रकार के कार्य करते हैं और अपनी योग्यता के अनुसार हम अनुकरण करने के लिए सोचेंगे। अब ठीक है भाई, महापुरुष के पास, भगवान के पास योग माया शक्ति है और उनके प्रत्येक कार्य जीव कल्याण के लिए,
इसलिए उनके धर्म के अनुकूल व्यवहारों का अनुकरण करेंगे, धर्म के प्रतिकूल व्यवहारों का अनुकरण सपने में भी नहीं सोचेंगे। लेकिन ये बताइए, महापुरुष को हम कैसे पहचानेंगे? पहले समझ लीजिए, महापुरुष को पहचानने के लिए कुछ सावधानियां। पहली सावधानी, महापुरुष संसार नहीं देता। भाई जब हम जानते हैं भगवान ही आनंद, आनंद ही भगवान, हम महापुरुष से संसार क्यों मांगेंगे? थोड़ा सा संसार हमारे पास है, हम लोग नशे में हैं। अगर और संसार मिल जाएगा, हम तो असिस्टेंट भगवान अपने आप को मानेंगे, भगवान की भक्ति क्या करेंगे? 6 चीजों का अहंकार होता है। जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी रेधमान मदपमान नैवाहत्याभिधातुं वै त्वाम किंचन गोचरम। धन का अहंकार, पोस्ट का अहंकार, पढ़ाई का अहंकार, परिवार का अहंकार, सौंदर्य का अहंकार, युवावस्था का अहंकार। जब ये सारी चीजें होती है, कुछ भी नहीं है। अगर युवावस्था है, बेपढ़ा लिखा है, अरे घोर कुरूप है, लेकिन युवावस्था है, नशे में होता है व्यक्ति। और जब अहंकार होता है, भगवान वो हृदय में नहीं रहते। इसलिए ईसा मसीह ने कहा था, a camel can pass through the eye of a needle, but a rich man cannot enter into the kingdom of God. सुई की नोक में भले ही ऊंटों का काफिला निकल जाए, लेकिन धनवान व्यक्ति ईश्वरीय मार्ग में चल नहीं सकता। बाइबल भी कहती है, when in agony he prayed more earnestly. बंगला में कहते हैं, अभावे भाव है। जब हमारे पास संसार होता है, हम नशे में रहते हैं, और जब हम नशे में रहेंगे, भगवान यहां नहीं रहेंगे। 6 चीजों का नशा, धन का नशा, विद्या का नशा, युवावस्था का नशा, परिवार का नशा, पोस्ट का नशा, सौंदर्य का नशा। इसलिए वास्तविक महापुरुष संसार का सामान नहीं देता। देश त्यागो महान व्याधि विरोधो बंधुविस्सह धनहानिरपमानं च मदनुग्रह लक्षणम। देश से दूर चले जाएंगे, देश त्यागो, भयंकर बीमारियां होंगी, महान व्याधि, रिश्तेदारों से लड़ाई हो जाएगी, धन नष्ट हो जाएगा, संसार से अपमान मिलेगा। भगवान कहते हैं, ये मेरी कृपा की पहचान है। तो आप लोग समझ गए होंगे, वास्तविक महापुरुष संसार नहीं देता। पहली सावधानी। दूसरी सावधानी, वास्तविक महापुरुष चमत्कार नहीं दिखाता। ये जो चमत्कार तो नमस्कार सिद्धांत हम ईश्वरीय मार्ग में नहीं अपनाएंगे। देखिए, एक है तामस सिद्धि। किसी व्यक्ति के पास गए, बेटा देख तो कमंडलू में क्या है। महात्मा जी कुछ तो नहीं है। अरे और एक बार अच्छे से देख। आपने देखा,
बादाम, काजू, किशमिश। महात्मा जी इसमें तो काजू किशमिश है, देखा, हम विभोर हो जाते हैं। जो इस प्रकार चमत्कार दिखाते हैं, घोर यातनामयी नरक मिलता है, और जो उनके अनुयायी होंगे तो उनको भी नरक जाना पड़ेगा। ये तामस सिद्धि, राजस सिद्धि, संसार देना। प्रारब्ध के विरुद्ध ना भगवान दे सकते, ना कोई महापुरुष। सात्विक सिद्धि, आप क्या सोच रहे हो उसको जान लेना, बता देना। अणिमा, लघिमा, गरिमा, इतना शरीर भारी हो जाएगा जैसे अंगद का पैर, इतना हल्का हो जाएगा, आप फूंक देने से वो जाकर लंदन में गिरेगा। एक बार रामकृष्ण परमहंसदेव के पास एक तपस्वी आया, उसने कहा हमारे पास बहुत सिद्धियां हैं। रामकृष्ण परमहंसदेव ने पूछा कौन सी सिद्धि? अरे हम गंगा जी के ऊपर पैर में इस पार से उस पार हो सकते हैं। तो रामकृष्ण परमहंसदेव ने पूछा भाई तुमने क्या साधना की? अरे हम 12 साल हिमालय की गुफा में साधना की। सस्ते का जमाना था। रामकृष्ण परमहंसदेव ने पूछा नाव में बैठकर गंगा जी के उस पार से उस पार जाने के लिए कितना पैसा लगता है? उसने बता दिया 2 पैसा लगता है। तो रामकृष्ण परमहंसदेव ने कहा तुम घर बार छोड़कर हिमालय की गुफा में जाकर 12 साल तपस्या किए, ये 2 पैसे की सिद्धि पाने के लिए? ये पागलपन छोड़ दो। ये तो सारी जो 3 सिद्धियां, ये तो माया के अंदर वाली सिद्धियां। वास्तविक महापुरुष तो मोक्ष भी नहीं चाहता है। भोक्ति मोक्ति स्प्रिया यावत् पिशाची हृदि वर्तते तावत् भक्ति सुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत्। मोक्ष भी नहीं चाहता है वास्तविक महापुरुष। तो पहली सावधानी, वास्तविक महापुरुष संसार नहीं देता। दूसरी सावधानी, वास्तविक महापुरुष चमत्कार नहीं दिखाता। तीसरी सावधानी, वास्तविक महापुरुष आशीर्वाद भी नहीं देता। अगर आशीर्वाद देने से काम हो जाता तो भगवान वहीं से बोल देते अरे भाई तुम्हारा सबका काम बन जाए। यहां क्यों आते? हम लोगों की गाली खाने के लिए। संत भगवान जब आते हम लोग गाली तो देते, निंदा तो करते, और क्या करते? चले जाते, मंदिर बनाते, ताली बजाते, कीर्तन करते। वास्तविक महापुरुष तत्व ज्ञान देगा, शंकाओं का समाधान करेगा, साधना सिखाएगा। साधना के समय हमारे खराब प्रारब्ध आ जाते हैं, उसको छिप छिप कर लड़ेगा, हमारे शरणागति के अनुसार बताएगा नहीं, और अंतकरण शुद्ध होने पर ईश्वरीय प्रेम प्रदान करेगा। He will impart us the theoretical scriptural knowledge. He will dispel all our doubts. He will teach us how to get our mind concentrated in God. भगवान में मन कैसे लगाना? And during the practice of sadhana, during the spiritual practice, our bad sanskars will come out. We will fight against those sanskars. And when our inner self is cleansed, He will give the divine love. इतना सारा काम महापुरुष करता है। तो महापुरुष आशीर्वाद नहीं दे सकता। अब दीक्षा थोड़ा समझ लीजिए। दीक्षा है क्या? कौन दे सकता है? किसको दीक्षा दी जाती है? दीक्षा देने पर क्या होता है? दीक्षा ईश्वरीय प्रेम को प्रदान करने की प्रक्रिया है। मैं आगे बताऊंगा। एक चीज हम ढूंढ रहे हैं,
और जब तक वो चीज नहीं मिलेगी हम अशांत ही रहेंगे। कबीरदास जी कहते हैं ना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंत नहीं कोय, सोई धनवंत जानिए, जाहि प्रेम धन होय। सब भिखमंगे हम लोग हैं जब तक प्रेम नहीं मिला। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। How will get his servitude when will be gifted divine love by the Supreme Lord? यही प्रेम हम ढूंढ रहे हैं। तो महापुरुष क्या करता है, बहुत ध्यान से इसको समझिए। वो दीक्षा है, वो प्रक्रिया जिससे प्रेम प्रदान होता है। ये दीक्षा कौन दे सकता है? लभ्यते च तत्कृपयैव, जो वास्तविक महापुरुष उसकी कृपा से है। दीक्षा है क्या? पहला प्रश्न, ईश्वरीय प्रेम को प्रदान करने की विधि। प्रेम क्यों चाहिए? हम क्या चाहते हैं? We want infinite knowledge, we want eternal existence, we want infinite bliss। जो हम चाहते हो कैसे मिलेगा? जब हम उसकी दास्ता करेंगे। उसकी दास्ता करने के लिए योग्यता क्या है? प्रेम, जो हमारे पास नहीं है। ये प्रेम कैसे मिलेगा? महापुरुष की कृपा से। ये शुद्ध होने पर। ये शुद्ध कैसे होगा? साधना से। तो दीक्षा है ईश्वरीय प्रेम प्रदान करने की प्रक्रिया। ये प्रेम कौन दे सकता है? वास्तविक महापुरुष। कब ये प्रेम मिलता है? जब अंतकरण शुद्ध होता है। अंतकरण शुद्ध कब होता है? बाय स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। यू कॉल इट मेडिटेशन, यू कॉल इट साधना, यू गिव एनी नेम। व्हेन इट विल बिकम प्योर, अभी अशुद्ध है, फिर वो शुद्ध होगा, फिर महापुरुष इसको विशुद्ध करके विशुद्ध प्रेम प्रदान करेगा। इसको दीक्षा कहते हैं। तो जब तक ये शुद्ध नहीं होगा, महापुरुष चाहने पर भी नहीं दे पाएगा। भाई जैसे हम लोग घर में इलेक्ट्रिकल फिटिंग करते हैं, अब पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, नहीं, तो हमारे कनेक्शन को उसके साथ जोड़ना है। तो भीतर की जो कनेक्शन है अगर ठीक होगी, तभी तो डिपार्टमेंट का व्यक्ति आएगा और मेन लाइन के साथ इसको जोड़ेगा। तो ये भीतर की फिटिंग है साधना, और मेन लाइन के साथ इसको जोड़ना ये महापुरुष का काम है। महापुरुष से मांगना नहीं पड़ेगा। ये भीतर की शुद्धता हो गई। लाइट 1 सेकंड में 1,86,000 मील स्पीड में जाती है। जब इसकी तैयारी हो जाएगी, इतना समय नहीं लगेगा। जो इमीडिएटली हम लोग कहते हैं ना, यहां फिटिंग ठीक हो गई, महापुरुष प्रेम प्रदान कर देगा। वो कान में हो, सिर में हाथ रखकर हो, देखकर हो, या हिमालय की चोटी पर बैठा है और यहां हमारा काम बन गया, वहीं से दे देगा। तो वास्तविक महापुरुष दीक्षा नहीं देता है, पहले शिक्षा देता है। शिक्षा पाकर, साधना करके इसको शुद्ध करने पर वो वास्तविक ईश्वरीय प्रेम को प्रदान करता है, जिसको दीक्षा कहते हैं। चौथी सावधानी, महापुरुष अभिशाप भी नहीं देता। तुकाराम थे, उनकी बीवी बड़ी कर्कशा थी। तुकाराम को डांटा, भाई तुम कमाकर कुछ लेकर आओ, घर कैसे चलेगा। बेचारे चले गए और दिन भर उन्होंने देखा, कुछ हुआ नहीं। जब लौट रहे थे, गन्ने का खेत था, उन्होंने गन्ना उठाकर ले आए। पति ने पूछा, कुछ कमाकर लाए हो? तुकाराम ने कहा, क्या बताएं भाग्यवान, आज प्रयास हमने किया लेकिन कुछ मिला नहीं।
हाँ, गन्ना अवश्य मिला, आज काम चला लो, कल कुछ हिसाब किताब प्रभु कर देंगे। पत्नी को गुस्सा आया और वो गन्ना तुकाराम के हाथ से खींचकर पत्नी ने लिया और तुकाराम की पीठ में जोर से मारा। गन्ने की 3 टुकड़े हो गए। तुकाराम ने कहा, देखो प्रभु की कितनी इच्छा है, सो ग्रेशियस, सो काइंड, अपने आप 3 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा तुम्हारे लिए, एक टुकड़ा बच्चों के लिए, टुकड़ा हमारे लिए, देखो अपने आप हो गया। ये महापुरुष लोग हैं। इसको सुनकर माताएं घर में जाकर ट्राई नहीं करेंगी, ये महापुरुष लोग कर सकते हैं। सुकरात थे, अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। उनके एक मित्र आकर बैठा था, तो पत्नी भी कर्कशा थी। पत्नी ने डांटा, अरे दिन भर बकर बकर होते हो और कुछ काम नहीं है, लेक्चरबाजी करते रहते हो, अरे जाओ कुछ कमा कर लाओ। सुकरात बैठे चुपचाप। मित्र ने कहा, अरे तुमको शर्म नहीं आती, सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती हुई और कुछ बोलते नहीं हो। सुकरात ने कहा, सॉक्रेटिस ने कहा, अरे मियां बीवी में जो मधुर संबंध है तुम कैसे जानोगे, हम क्यों कुछ बोले। पत्नी को और गुस्सा आया। पत्नी ने बाल्टी में पानी भरा और सुकरात के सिर के ऊपर फेंका। अब मित्र ने कहा, अब तो कुछ बोलो, हद हो गई। सुकरात ने कहा, क्यों कुछ बोलूं, अरे पहले बादल का गर्जन हुआ, फिर बरसात हुई। अगर बादल गरज कर चले जाएंगे, किसान लोग डांटेंगे, देखो भाई बादल गरज कर चला गया, कुछ बूंदाबांदी नहीं हुई। देखो पहले गर्जन हुआ, बादल का गर्जन, फिर बरसात हुई। ये महापुरुष है। महापुरुष किसी को अभिशाप नहीं दे सकते। महात्मा बुद्ध, एक व्यक्ति आया, उसके बेटा महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया था, तो बाप को बड़ा गुस्सा था और आकर डांटने लगा। चुपचाप बैठे, सुनते जा रहे। दोपहर का समय हुआ तो महात्मा बुद्ध ने एक शिष्य को बुलाया और कहा, भाई देखो सवेरे से इनका कार्यक्रम चल रहा है, थक गए हैं, इनको खिला दो, फिर थोड़ा विश्राम करके ले आना हमारे पास, फिर इनका नेक्स्ट सेशन शुरू हो जाएगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, सवेरे से हम आपको डांट रहे हैं, आप लक्कड़ पत्थर का बने हो क्या, आपके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं। महात्मा बुद्ध ने कहा, अच्छा बताओ, अगर तुम किसी को कोई सामान दोगे वो नहीं लेगा तो सामान किसके पास रहेगा। उसने कहा, हमारे पास रहेगा। सवेरे से तुम जो सामान दे रहे हो हमने लिया नहीं, तो सामान तो तुम्हारे पास है, हमको गुस्सा क्यों है। तो वास्तविक महापुरुष आशीर्वाद नहीं देता, अभिशाप नहीं देता। वास्तविक महापुरुष शिष्य परंपरा नहीं बनाता। वास्तविक महापुरुष को पहचानने के लिए उसके बहिरंग वेशभूषा नहीं देखेंगे, आश्रम नहीं देखेंगे। हम लोग सोचते हैं ये दुग्धार, ये फलाहारी है, ये ब्रह्मचारी है, ये सन्यासी है। सनातन धर्म की परंपरा में 99.99% महापुरुष सब गृहस्थी थे। ये तो त्यागियों की परंपरा ही कलयुग में हुई। तो आप लोग समझ गए होंगे सावधानियां। वास्तविक महापुरुष संसार नहीं देता, नंबर 1। वास्तविक महापुरुष चमत्कार नहीं दिखाता, नंबर 2। वास्तविक महापुरुष आशीर्वाद नहीं देता, वास्तविक महापुरुष अभिशाप नहीं देता, नंबर 4। वास्तविक महापुरुष शिष्य परंपरा नहीं बनाता। वास्तविक महापुरुष को पहचानने के लिए 6ठा नंबर, बहिरंग वेशभूषा आश्रम मत देखिए। 7वां,
अलग अलग कक्षाओं के महापुरुष होते हैं। आपकी रुचि, आपके संस्कार के अनुसार आप महापुरुष को अपनाइए, भेद बुद्धि नहीं करेंगे। ये सावधानियां। अब प्रत्यक्ष प्रमाण। पहले प्रत्यक्ष शाब्दिक प्रमाण। महापुरुष की वाणी श्रवण करने से अनादिकाल से जितनी शंकाएं चली जाती है, क्योंकि वो महापुरुष की वाणी नहीं है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जिसने उसको पा लिया वो भगवान के बराबर हो गया। और भगवान की वाणी दिव्य है। वही संसारी व्यक्ति बोलेगा उसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन महापुरुष की वाणी भीतर जाती है। सदां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा। वो वाणी भीतर जाती है। श्रद्धा नहीं थी, अपने आप श्रद्धा आ गई, क्योंकि सारी शंकाएं अनादिकाल से सब चली गई। इसलिए प्रथम दिन में हमने कहा था, अगर प्रथम दिन से अंतिम दिन तक प्रवचन आप लोग सुनेंगे, एक भी आध्यात्मिक शंका नहीं रह सकती। हमारी चैलेंज थी, क्योंकि हम जिनकी वाणी कह रहे हैं वो तो जगत गुरु उत्तम है, उनके बारे में अंत में बताऊंगा। तो इसलिए महापुरुष की वाणी भीतर जाती है। श्रद्धा नहीं थी, श्रद्धा आ गई, शंकाएं चली गई। वही श्रद्धा फिर वो रति में रूपांतरित हो जाती है, रति भक्ति में रूपांतरित हो जाती है। बाइबल भी कहती है, I have put my words in thy mouth। ईसा मसीह नहीं बोल रहे हैं, वो परम पिता उनके मुख से स्वयं बोल रहे हैं। कुरान भी कहती है, I am speaking from the lips of मोहम्मद। वो मोहम्मद के शब्द नहीं है, उनके शब्द है। तो आप लोग समझ गए होंगे, महापुरुष की वाणी में दिव्यता होती है। जिन दिव्य वाणी की श्रवण करने से अनादिकाल की शंकाएं चली जाती है और साधक निर्ध्यांत हो जाता है। दूसरा प्रमाण प्रत्यक्ष अनुभवात्मिक प्रमाण। महापुरुष का संग करने से संसार से वैराग्य, ईश्वर के लिए अनुराग अवश्य होगा। लेकिन यहां हमारे अंतःकरण की स्थिति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Ashenil cannot be driven into a hard stone, but it enters easily into the mud. Similarly, the saying of a pious man does not affect the whole world, it affects the believer. देखिए, एक चुंबक रखिए, 4 सुइयां, एक सुई प्योर लोहे की, दूसरी सुई लोहा भी है 75%, 25% अलग धातु है, तीसरी सुई 50-50, चौथी सुई लोहा है ही नहीं, समान दूरी पर रख दीजिए, बीच में चुंबक, जो प्योर लोहे की सुई चुंबक उसको खींच लेता है, जो दूसरी सुई उसमें चुंबक है तो उसमें लोहा है और अलग धातु भी है, चुंबक में जाकर चिपक नहीं जाती है, लेकिन चुंबक जब पास मिलेंगे तभी चुंबक में चिपकेगी। और तीसरी सुई जो है 50-50 है, वो चुंबक में चिपकेगी नहीं, चुंबक को पास लाएंगे वो हिलेगी। और चौथी जो सुई है जिसमें लोहा है ही नहीं, आप चुंबक को रगड़ दीजिए
उस सुई के ऊपर चुंबक का कोई असर नहीं है। तो हमारे अंतकरण की स्थिति के अनुसार महापुरुष की वाणी का प्रभाव पड़ता है। अंतिम सबसे ठोस प्रमाण, अप्रत्यक्ष प्रमाण, इसमें कोई डाउट नहीं। महापुरुष के पास एक दिव्य चीज होती है, ईश्वरीय प्रेम। महापुरुष उसको छिपा कर रखता है, क्योंकि प्रेम को छिपाना चाहिए। लेकिन एक लिमिट तक वो छिपा पाता है। जब लिमिट के बाहर होता है तो छिपा नहीं पाता है। वो भीतर में जो छिपा हुआ प्रेम कुछ लक्षणों से बाहर प्रकट हो जाता है। एवं स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागोद्धृत चित्तौ जयी। भागवत। वो जो ईश्वरीय प्रेम एक लिमिट तक कंट्रोल कर पाता है, जब लिमिट के बाहर होता है वो कंट्रोल नहीं कर पाता। जैसे यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र अग्निः, जैसे आप धुआं देखकर आग का अनुमान लगाते हैं, भीतर में जो ईश्वरीय प्रेम 8 प्रकार के लक्षण हैं। स्तंभ स्वेदोत्थ रोमांच स्वरभेदोत्थ बेपथु वैपन्यमश्रु प्रलय इत्यस्तो सात्विका स्मृताः। भक्ति रसामृत सिंधु। शरीर खंभे के समान हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। स्तंभ, शरीर से पसीना निकलेगा। स्वेद, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोमांच, स्वर बदल जाएगा। स्वर भेद, शरीर में कंपन होगा। बेपथु, शरीर का रंग बदल जाएगा। वैपन्य, आंखों से झरझर आंसू निकलेंगे। कभी कभी महापुरुष बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। इन 8 लक्षणों से चतुर चालाक साधक महापुरुष को पहचान लेता है। सूफी धर्म में भी यही है। आहें सरदे रंगे जरदे चश्मे तर इंतजारी बेकरारी बेसबर कम गुप्तनो कम खुर्दनो खबाबे हराम आशिकानाम नो निशान। जो खुदा से मोहब्बत करते हैं उनमें ये 9 लक्षण पाए जाते हैं। वही चीज भक्त रसामृत सिंधु में। लेकिन ऐसा नहीं है वो दुकान खोलकर बैठता है महापुरुष, कोई आएगा ग्राहक हम प्रकट करेंगे, वो तो छिपाता है। लेकिन जब आप श्रद्धा युक्त होकर जाएंगे, नंबर 1 महापुरुष के पास कुछ दिन रहेंगे। नंबर 2 दिन, हफ्ते, महीने, साल महापुरुष की सेवा करेंगे। नंबर 3 महापुरुष को उसके प्रेमास्पद भगवान के परिवेश प्रदान करेंगे, नाम रूप लीला गुण इत्यादि। तब महापुरुष के भीतर जो छिपा हुआ प्रेम वो बाहर प्रकट हो जाता है। वाक्गदा द्रवते यस्य चित्तम। भागवत। उसका हृदय द्रवीभूत हो जाता है, कंठ गदगद हो जाता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी हाथ उठाकर नृत्य करता है, कभी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। वो छिपाने के लिए प्रयास करता है, लेकिन जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है वो प्रेम प्रकट हो जाता है। जिसके पास ये प्रेम है बस उसको पकड़ लीजिए। अगर प्रेम नहीं है, विप्रादुषट गुणयुतादर व्यंदनाभ पादार बिंद विमुखा च्वपचम वरिष्ठम। भागवत। 12 गुण युक्त ब्राह्मण हो, सदाचारी, जितेंद्रिय, वैराग्य, लेकिन प्रेम नहीं है, कुछ नहीं है। अगर प्रेम है, अहो बतो स्वपचो तो गरियान। भागवत। वो वेश्या हो सकती है, चांडाल हो सकता है, लेकिन अगर प्रेम है तो सब कुछ है। भक्तिवंत अति नीच
प्राणी मोहि परम प्रिय असि मम वाणी। जिसके पास प्रेम है उसके पास सब कुछ है। अगर प्रेम नहीं है, भक्तिहीन बिरंची की ना होई। भगवान कहते हैं अरे ब्रह्मा मेरा पुत्र है लेकिन भक्ति नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये प्रेम है असली चीज। जिस प्रेम से इश्क मोहब्बत, ये प्रेम शब्द हम संसार में व्यवहार करते हैं, ये संसार का शब्द नहीं है, वो एक दिव्य शब्द है जिसके अंदर स्वयं भगवान है। और जो प्रेम हमको पाना है, क्योंकि हम जो चाहते हैं अनंत सत्ता, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद तभी मिलेगा जब प्रेम मिलेगा। क्योंकि ये सारी चीजें तभी मिलेगी जब भगवान की दास्ता हमको मिलेगी। और भगवान की दास्ता करने के लिए एक ही योग्यता, ईश्वरीय प्रेम। इसीलिए हम संसार की दास्ता कर रहे हैं और संसार का सामान हमको मिल रहा है। सब समय मौत का भय, सब समय अज्ञानता, सब समय दुख। लेकिन चाहते हैं हम कभी मरे ना, हमको अनंत ज्ञान मिले, हमको अनंत आनंद मिले। जो हम चाहते हैं वो तभी चीजें मिलेंगी जब भगवान की दास्ता हमको मिलेगी। भगवान की दास्ता तभी मिलेगी जब हमारे पास प्रेम आएगा, और प्रेम महापुरुष की कृपा से मिलेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे महापुरुष को पहचानने के लिए सावधानियां और प्रत्यक्ष 2 प्रमाण और अप्रत्यक्ष प्रमाण, ठोस प्रमाण। संसार से मन का वैराग्य हो गया। नाउ आवर माइंड इज डिस्चार्ज फ्रॉम द एल्यूरमेंट्स ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। तो फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, वी फाउंड ए जेन्युइन सेंट। Third condition, we sacrifice our mind, intelligence at the lotus feet of the spiritual master. जब ये 3 शर्तें पूरी हो जाती है, अर्जुन की तो यही समस्या थी। अर्जुन खोपड़ी लगा रहा था। जब उसने बुद्धि को समर्पण किया तभी काम बना। संसार से विरक्त मन, detached mind from the material world, genuine spiritual master, and the mind and the intelligence which is surrendered to the spiritual master. When all these 3 conditions are fulfilled, the spiritual journey will begin. इस प्रकार शरणागत साधक की उंगली पकड़कर महापुरुष ईश्वरीय मार्ग में ले चलता है। ईश्वर को पाने के लिए कितने मार्ग है और सबसे बढ़िया मार्ग कौन सा मार्ग है, इसके ऊपर चर्चा होगी, लेकिन आज नहीं, कल से। थोड़ी देर के लिए भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए। देखिए, ये प्रेम हमको पाना है। प्रेम को पाने के लिए इसको शुद्ध करना है, और इसको शुद्ध करने के लिए कलयुग में एक ही उपाय है, भगवान नाम संकीर्तन। तो हम चलिए 5 मिनट के लिए थोड़ी साधना कर लेते हैं। आप लोग सब सीधा होकर बैठ जाइए। बंद आंखों से अपने स्थूल शरीर को देख लीजिए। ये स्थूल शरीर के भीतर आपका सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर के भीतर आपका कारण शरीर है। कारण शरीर के भीतर आत्मा है। एक भाव शरीर बनाइए, मेडिटेटिव बॉडी। ये भाव शरीर में आत्मा का प्रवेश हुआ। अब भाव शरीर युक्त आप चलिए। जिस प्रकार कल अभ्यास हुआ था, चलिए ऊपर। हम लोग हिंदू काउंसिल हॉल के ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। नायरोबी को ऊपर से देख रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। केनिया को देख रहे हैं ऊपर से और ऊपर। अफ्रीका कंटिनेंट को देख रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग अप
and we have, from the space, we are seeing the earth surrounded by ocean. और ऊपर चलिए, now go still up. We are piercing through Bhumandal, Chandramandal, Suryamandal. We are going up Paramist Mandal, Swayambhu Mandal. We have come to the end of this Brahmanda, and there are innumerable Brahmandas. उसको भगवान स्वयं नहीं गिन सकते। फिर चलिए और ऊपर, अब बिरजा नदी के पास पहुंच गए। बिरजा नदी के इस पार मटीरियल वर्ल्ड और बिरजा नदी के उस पार से द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांससेंडेंटल वर्ल्ड। दिस मटीरियल वर्ल्ड इज 1/4 of the body of the Supreme Lord, and the spiritual transcendental world is 3/4 of the body of the Supreme Lord. बिरजा नदी के उस पार सिद्ध लोग, where the Gyanis are immersed in that impersonal bliss. फिर ऊपर चलिए, यहां वैकुंठ लोग, शिव लोग, साकेत लोग। चलिए आज साकेत लोग चलते हैं। प्रभु राम सीता मैया के साथ सिंहासन में बैठे हैं। हनुमान जी हैं, लक्ष्मण जी, भरत जी महाराज, शत्रुघ्न जी। कोई चामर पकड़कर, कोई छत्र पकड़कर सभा में वशिष्ठ मुनि भी है। आप प्रवेश कर रहे हैं प्रभु राम के दरबार। अब प्रभु राम बैठे हैं। प्रभु राम और सीता मैया के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। अब चलिए हम लोग संकीर्तन करते हैं प्रभु राम को रिझाने के लिए। To please him, we are chanting his sweet pastimes. English book, page number 92, प्रेम रस माधुरी, हिंदी पुस्तिका, पेज नंबर 310। जय राघवेंद्र सरकार की, जय सीता सुकुमार की। 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 जय सिया राम सरकार की, जय लक्ष्मण राज उदार की। जय सिया राम सरकार की, जय
you are presenting your real self. Oh my dear Lord Ram, I am so wretched. I am so impure. I am so abominable without your grace, without your compassion, without your mercy. I have been suffering from time immemorial. In this life also, I am committing sins after sins. Oh my dear Lord, please grace upon me. Mother Sita, you are so compassionate, you are so kind, you are so merciful. Please grace upon this wretched soul. With this humble submission, let us chant the divine name. Jai Raghavendra Sarkar ki English book, page number 92, Hindi Pustika, page number 310. Premras Madhuri, English, page number 92, Hindi Kitab, page number 310. जय राघवेंद्र सरकार की जय सीता सुकुमार की जय राघवेंद्र सरकार की जय सीता सुकुमार की जय राम लक्ष्मण जानकी जय सीता रूप की जय राम लक्ष्मण जानकी जय सुधा रूप रसखान की जय जय सीता राम की जय केवट अभिराम की जय 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 सीता राम की जय केवट रति अभिराम की जय जय सीता राम की जय केवट अभिराम की जय 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 सीता राम की जय केवट रति अभिराम की। My dear Lord Ram, the love of Kevat, the good man, is unique, is matchless. His love for you is so enchanting, is so amazing. I am feeling really ashamed. I have nothing to offer you. Oh my dear Lord Ram, oh Sita Maiya, please grace upon me. Jai Siya Ram Sarkar